Hello, Assalamu alaikum. How are you? I hope so. You are fine. Welcome to my YouTube channel English Notes. Today we discuss about the Plato idea of imitation. First of all, I explain these lectures in English and then later I explain it Urdu. In these lectures, we discuss the Greek philosopher Plato's idea of imitation, and I will explain how the idea of these imitations work and how they talk about taking the artist out of the public. And in these lectures, I will explain Plato's fundamental theory and what he thought about the imitations. The lectures may seem a little familiar, but you will definitely understand this theory. First, understand that Plato believes in ideal form. The ideal form is a God master plan. So God has a perfect blueprint for everything according to the Plato. Means it is the point views related to Plato's. As perfect love and perfect justice are, they are altering and unchanging things, and they are only visible to those peoples who are philosophized like a Plato. And then there is in our physical world, which we see as the perfect blueprint of things. God has this and all the things in the world in a perfect form, the blueprint of which is with God, and this is their shadows is his, means it is a copy of it. Just like your smartphone is a copy of ideal, because it cannot be perfect smartphone. So means make many improvement as you can in it in your smartphone. There is always need for improvement as a copy can never be perfect as the original. Now here we come in the third forms, art and imitation. Copy is also copying. For example, if a painter came along and took a pictures from your book and turned it into a painting in his work, Otto got angry that this was a copy of copy. The artists of a third copy take us away from reality. What was the problems with Plato? Why did they want to take art and artists out of the public? Look, Plato have give our reasons, a rational reason. Their aims was to make people rational, not emotional. According to Plato, it made people emotional. Plato was worried that if people watch the drama, they will start regretting it. Logics will be forgotten. This illusion is created by imitation, just like how people today mistakes Instagrams and Snapchats filters for reality, and when they meet people in reality, they don't recognize them. This was a plot of warnings, but we didn't listen to what he gave. Plato's message is clear. Don't settle for copies, let the originals to be rooted. Today people can confuse by real filters and fake news. Plato says, wake the spirit within a search for our ideal forms, philosophize and achieve self-realizations. Otherwise, life will become a copy of copy. इस लेक्चर्स में हम ग्रीक फिलोसफर प्लाटो के इमिटेशंस के आइडिया को डिस्कस करेंगे और मैं आपको आज ये समझाऊंगी कि किस तरह उनका जो इमिटेशन का आइडिया था वो वर्क करता था और किस तरह उन्होंने जो आर्टिस्ट थे उसको पब्लिक से बाहर निकालने की बात की। तो इस लेक्चर्स में प्लाटो की जो फंडामेंटल थ्योरी है वो भी मैं आपको समझाऊंगी और उसके इमिटेशन को लेके वो क्या सोचते थे उसके बारे में भी हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा आपको फेमिलियर लगे, लेकिन आपको ये थ्योरी ज़रूर समझ आएगी। पहले ये समझ लो कि प्लाटो आइडियल फॉर्म में बहुत मानते थे और जो आइडियल फॉर्म है वो गॉड का मास्टर प्लान है। प्लाटो के हिसाब से वो ये समझता था हर चीज का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट जो होता है ना वो गॉड के पास है। जैसे कि परफेक्ट लव और परफेक्ट जस्टिस, ये फॉर्म है, ये अल्टर है और अनचेंजिंग है। ये सिर्फ किसके पास है? गॉड के पास है। और ये सिर्फ फिलॉसफी करने वालों को दिखाई देता है जो मीन्स के फिलॉसफी करते हैं। जैसे कि प्लाटो फिलोसफर थे, वो फिलॉसफी करते थे, तो उनको ये बात समझ आएगी। नॉर्मल जो कॉमन मैन है जो फिलॉसफी नहीं करते या पढ़ते नहीं, उनको नहीं समझ आएगी प्लाटो के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आते हैं हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड, जो हम देखते हैं
चीजों का परफेक्ट ब्लूप्रिंट जो है वो सिर्फ गॉड के पास है, और जो कुछ यहाँ पे है दुनिया में वो परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। वो उस परफेक्ट फॉर्म की, उस ब्लूप्रिंट की कॉपी है। ये उन चीजों का साया है। तो जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन आइडियल की एक कॉपी है, क्योंकि परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं बन सकता। मतलब उसमें जितने भी सुधार कर लो, ये एक परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं बन सकता है। ये उसकी कॉपी है। मतलब जो एक्चुअल ब्लूप्रिंट है वो सिर्फ गॉड के पास है, और ये जो सारी चीजें वर्ल्ड में है ये उसकी नकल है, और नकल कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहेगी, और ये नकल कभी भी ओरिजिनल जैसी परफेक्ट भी नहीं हो सकती। और अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड लेयर आती है, आर्ट एंड इमिटेशन। नकल की भी नकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेंटर आ गया और उसने आपकी बुक ले ली और उस बुक की पेंटिंग बना ली और अपने वर्क में उसको यूज किया, मतलब कि उसकी पेंटिंग बना ली, तो प्लाटो को गुस्सा आया इस पे कि ये तो नकल की भी नकल हो गई, मतलब कि थर्ड क्लास कॉपी हो गई। और ये जो आर्टिस्ट लोग हैं ये हमें हकीकत से, हमें रियलिटी से दूर ले जाते हैं। तो प्लाटो की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वो आर्ट और आर्टिस्ट को क्यों पब्लिक से बाहर निकालना चाहते थे। और देखो, ये एक उन्होंने एक रीजन भी दिया है, एक रेशनल रीजन दिया है। इसका मतलब था लोगों को रेशनल बनाना, इमोशनल नहीं। उनके हिसाब से जो आर्ट है वो लोगों को इमोशनल बना रहा है। प्लाटो को ये डर था कि अगर लोग ड्रामा देखना शुरू कर देंगे तो वो रोना स्टार्ट कर देंगे, और क्या करेंगे, लॉजिक को मुकम्मल तरीके से भूल जाएंगे, वो उस एल्यूजन में फंस जाएंगे। और ये इमिटेशन से एल्यूजन पैदा होता है, एल्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि आजकल के लोग इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर को रियल समझ लेते हैं, और रियल में जब वो इंसान से मिलते हैं तो उनको पहचानते ही नहीं है। तो ये प्लाटो की वार्निंग थी, लेकिन हमने नहीं सुनी जो उन्होंने दी थी। और प्लाटो का जो मैसेज था वो तो क्लियर था कि डोंट सेटल फॉर अ कॉपी, चेज द ओरिजिनल ट्रूथ। आजकल के लोग रील्स, फिल्टर और फेक न्यूज में उलझ गए हैं और ऐसे फंस गए हैं। प्लाटो कहते हैं कि अंदर की जो हमारे पास स्पिरिट है उसको जगाओ, आइडियल फॉर्म की तलाश करो, फिलॉसफी करो और सेल्फ रियलाइजेशन करो, वरना जिंदगी नक्कल की भी नक्कल बन जाएगी।